Hello everyone, class 10th. I'm Rashid Khan here from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class today here we'll have to study about the chapter number 2, acid, bases and salts, in which I have already we have already completed the chapter now. There is a terms to solve the questions given in it. It is the concentrations of hydrogen. Concentration of hydrogen. It is considered to be as pH. Now the next question is, which is a strong acid? If a solution with pH 4 or a solution with pH 15, pH 1.5. Why it is so? The amount of hydrogen ion present in particular type of a solution. So if there is a 4 hydrogen and there is a 1.5 hydrogen ion concentration, that means suppose here is the hydrochloric acid, and we know very well the hydrochloric acid is the strong acid. Why? Because there is a hydrogen concentration is only 1 or more than 1. It is slightly weaker, but 1.5 can shows the strong acid. Is it okay? Five 5.5? No. 7 to 7.8. That means it is slightly, first of all it is from a neutral to some of the alkalis or alkaline, the blood or the body, pH of a body, that can increases from the neutral point to the some alkaline medium, that is 7.8. It is a very weak alkaline, but it is a alkaline medium, and its nature is alkaline. Question number next, name the scientist who give the pH scale. Who has measures about the pH scales? pH scale सबसे पहले किसने बनाया? Have you any idea? pH को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? देखिए, pH को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले इनका नाम आता है, लेवोजियर है, लेकिन कुछ बुक्स में अलग अलग दिया गया है. एक बार थोड़ा सा इसको कंफर्म करना पड़ेगा. लेवोजियर ने दिया था, लेकिन एक बार हम कंफर्म करके फिर बता देंगे. नेक्स्ट आ जाइए, हम देखते हैं दूसरा, नेम द साइंटिस्ट, हु व्हाट आर द एसिड बेस इंडिकेटर. एसिड बेस इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे? किससे हमें पता चलेगा एसिड बेस है? कौन सी मटेरियल एसिड है, कौन सा? लिटमस पेपर इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ अ एसिड बेस इंडिकेटर. एक्सेप्टिंग टू दिस, एनीवन एल्स? इसके अलावा मोस्ट ऑफ द नेचुरल एंड man, then which one is the base? Is that okay? What is the color of methyl orange in basic medium? methyl orange का कलर, तो यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन दिया गया है. बेसिक सोल्यूशन या बेसिक मीडियम में कैसा हो जाएगा? येलोइश हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इनटू व्हाट वे द कलर would hydrochloric acid pH value 1 turns the universal indicators into what color? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर pH वैल्यू 1 है तो ये टर्न द यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये टर्न होता है किस कलर में?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखोगे तो उसके कलर क्या होंगे? कोई कलर ये ऑब्टेन करता है, लेकिन जब इसको हम लोग pH वैल्यू 1 कर देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यू नो वेरी वेल व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्यों बहुत दूर से बोल रहे हो? क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? ओके प्रगति, एसिड whenever the hydrogen ion displaces or displaced by any metal. Yes, when the salt is formed, that means what? The salt is formed due to the salt is formed due to the action of acid and bases. इसका मतलब क्या है? दोनों केसेस में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है व्हेन द एसिड गेट रिएक्टेड विद द बेस इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये बहुत मस्ट है उसके अंदर ऐड करना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द राइट प्रोपोर्शन ऑफ द एसिड व्हेन रिएक्टेड विद द bases, then they can be a neutral solution form, and the process is said to be what? The neutralization reaction. Is that clear? Now is it okay? Madan? Okay, now come to the next one. How is the concentration of hydrogen ion affected when a solution of an acid is diluted? Water. When we have to dilute that particular type of a solution or acid, is there any effect of hydrogen ion concentration? Is the hydrogen ion positive character होगा? वन यूनिट मास की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को H2O ऐड कर रहे हैं तो H2O ऐड करने पे H प्लस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, OH आयन बढ़ेगा कि बढ़ेगा? हाइड्रोजन आयन तो बढ़ेगा, साथ में हाइड्रोक्सी आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रोक्सी भी बढ़ेगा। इसका मतलब उसके बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? दिस विल फॉर्म द सॉल्ट। इसको दूसरे वर्ड में कहें तो व्हेन द hydrogen of acid get replaces by the any metal, it will form salt. उसका एग्जांपल देखिए, H2SO4 plus KOH। तो ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ? पोटेशियम से, और पोटेशियम रिप्लेस होने के बाद K2SO4 का फॉर्म करेगा प्लस H2O और ये हो जाएगा 2FO, राइट? तो ये जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है किससे? किसी एक मेटल से, एंड रिजल्टेड देयर इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इज इट ओके? जो रेगुलर वाले लोग हैं उनका तो ठीक है, जो इरेगुलर रहते हैं वो क्यों इरेगुलर रहते हैं? हो सकता है कि भाई उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो इसलिए क्लास नहीं ले रहे हो, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि क्लास ले रहे तो क्लास लिया करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड अ बेसिक सॉल्ट।
नॉर्मल सॉल्ट कब होगा, एसिडिक सॉल्ट कब होगा और बेसिक। 1 minute. Yes. Okay, no issue. Okay, just stop. Next, who want to say something? Yes. Okay. And which one is the strong? Sorry, acidic salt. Okay, no issue. Which one is acidic salt? A strong acid react with a weak acid. No. Base. Okay. Simply salt, when the salt is formed, I have already told you about that the right proportion of a acid when reacted with the right proportion of a base. Is it okay? That means the pH value must contain equal to 7. If the pH value contain equal to 7, that indicate it is a neutral solution, right? And that is called salt. And this one is also called as normal salt. Is it okay? That means is strong acid and is strong base, right? So the resulting will be the normal salt form. If it is the strong acid and weak base, then it is strong acid. So it is the acidic salt, right? Acidic salt. It is lower than that of 7. And if it is the strong base and weak acid, so what will be the salt? What type of the salt will form? Basic salt, and that have the pH value of about more than that of 7. It is exactly whatever the 7 is given, that is called as a universal indicator. So by the way, we can know about at the point of a 7, it can only show about that the normal salt. Beyond the 7, it is a basic, or less than 7 question. So from the question number next, I have already told you about what happened when the blue crystal of copper sulfate are heated. ये आप सभी को पता है कि जब उसको हीट किया जाता है तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, राइट? ठीक है जी. Next happens, there will be the remaining parts of a salt can be obtained in the form of a crystals. Why? Because this one is called as a water of crystallization. हम लोग जब भी इनका प्यूरिफिकेशन करते हैं उससे पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है. और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, जब ये इवेपोरेट करते हैं तो जो भी बचता है इम्प्योरिटीज की वजह से किस फॉर्म में बचेगा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में. इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what will you observe when the blue liquid solution is added to the solution of ferric chloride? फेरिक क्लोराइड क्या है? एसिड है या बेस है? फेरिक क्लोराइड क्या है? एसिड है या बेस है या कुछ और है? FeCl3. ये क्या हो सकता है? ये सॉल्ट हो सकता है, राइट?
अब सॉल्ट है तो इसमें हमने मिलाया क्या हुआ है, इसमें फेरस मिला हुआ है या फेरिक मिला हुआ है और क्लोरीन मिला हुआ है, फेरिक और क्लोरीन, फेरिक और क्लोरीन। अब हम देखेंगे कि ये जो फेरिक है तो फेरिक क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी फेरिक जो है ये किस तरफ है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करता है, उससे निकला हुआ है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड उससे निकल गया फेरिक, और यहाँ पे CH Cl3। तो क्या हम ये चेक करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड वीक बेस है, जो भी है ये क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बना रहे हैं। और सॉल्ट का जो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं वो क्या होगा, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, ना तो एसिड है ना बेस है। इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंजेस होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी हम लोग एसिड या बेस पे कराएंगे तब लिक्वस पेपर का कोई इंपैक्ट होगा, अदरवाइज कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। नाउ द नेक्स्ट वन, here is given as calcium sulfate, calcium sulfate or hemihydrate. It is a form of a bleaching powder. Why it is called as, it is a form of a bleaching powder, remember it is a form of bleaching, sorry not bleaching powder, it is a form of plaster of Paris. Sorry, it is a form of a plaster of Paris. Why it is called so? इसको हम लोग क्यों कहेंगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म है? पता है इसका रीजन क्या है? हम लोग जो लिखते हैं जिप्सम, राइट, जिप्सम एक हार्डेंड सब्सटेंस होता है, हार्डेंस करने के लिए सब्सटेंस यूज किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4 into 2H2O, right? When it get heated very much, जब इसको हीट किया जाता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री केल्विन, what will happen then? It will be converted, yes, it will be percent, जो वाटर है वो क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। 75% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेटेड होंगे एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट, next question is, what are the two turmeric? Got it? Next question, what happened when the hydrochloric acid is added to the turmeric powder, and what will happen when the sodium hydroxide? Reddish brown, very good. इसका जो येलो कलर होगा, इसका जो येलो कलर होगा, it will be converted into red. Which plant from we can obtain? Not lichen, this is called as lichen. Lichen, right? Very good. Next is, what is the color of litmus solution when extracted from its plant? जब इसको निकाला जाता है तब किस कलर का होता है? जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कलर इसका कैसा रहता है? हाँ, पर्पल रहता है कि पिंकिश रहता है?